Hello people of the internet, welcome back to my channel. My name is Tumpa and today I'm going to do this easy step-by-step makeup tutorial, and this is for beginners. Now this makeup is a very neutral kind of makeup. You can carry this makeup with Indian attire or even western wear, and yeah, I'm not wearing any false eyelashes. I have also given two choices for the lipstick in the end, so keep on watching, subscribe, like and share, and let's get started. Alright, so the first thing which people mostly use is a toner. Now toner is for someone who has oily skin or if you have open pores. So I personally don't use toners, but then I can suggest you one Good Vibes cucumber toner. I really like this product, but I don't use it as a toner. I just use it like a face mist because it smells really good. My skin is little dry right now, so I'm going to skip this. Then we should move on to some hydration. So basically right now we need to prep our skin. अपने skin को hydrate करके ready करना है makeup के लिए. तो मैं यहाँ पे अभी एक सेरम यूज करूंगी. अगेन सेरम इज ऑप्शनल, आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर के साथ भी अपना मेकअप शुरू कर सकते हैं. दिस इज विटामिन सी प्लस गोजी बेरी anti-pigmentation wrinkle balancing serum. This will suit oily, normal and dry skin. And again, this is a really good serum. It absorbs in your skin like quickly and it gives you a nice hydration, and it is not oily at all. The next step we'll move on to is a moisturizer. So like I said, you can skip the serum, but always use a good moisturizer before you start your makeup. This one can be used by normal, oily and dry skin. Wow ka aloe vera multivitamin face cream hai, and this is really good, and it has a very refreshing aloe vera and minty kind of fragrance, and you should really hydrate your skin well before starting makeup, because if you have dry patches and if you don't use moisturizer and start doing makeup, बाद में मेकअप खत्म होने के बाद ना 1-2 घंटे बाद आपके ड्राई पैचेस निकल के आने लगेंगे, आपके फाइन लाइंस ज़्यादा दिखने लगेंगे. The next thing which I'm going to do is start with my eyes. You can also do your face first and do the eyeshadow or whatever eye makeup later. But if you are a beginner and you have just started learning makeup or eye makeup, then it is better that you do your eyes first and then your base makeup. It depends on your eyeshadow palette. उसमें अगर fall out होगा, वो गिरेगा, फिर आप पोंछोगे, फिर आप वापस ठीक करोगे. तो अगर आप अभी शुरू किया है मेकअप करना या सीख रहे हो, तो पहले आई मेकअप कर लो. एक तरीके से ये अच्छा भी है बिकॉज अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, तो तब तक नहीं ये सारी चीजें मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएंगी और तब तक मैं अपना आई मेकअप करूंगी. एंड हाँ, आई मेकअप से पहले ऑफ कोर्स आईब्रोज करना है. बाद में भी कर सकते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ पहले करते हैं. इट डजंट रियली मैटर, मेकअप हैज नो रूल्स. सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी आईब्रो पिगमेंट और जेल एंड ऑल दैट. सो आई एम जस्ट यूजिंग अ पेंसिल. आप पेंसिल से ही पहले सीखना शुरू करें, बाद में आप चाहें तो आईब्रो किट यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ. बट आज मैं सारे अफोर्डेबल और इजी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो हर कोई यूज़ कर सके. सो दिस इज़ मेबलिन डार्क ग्रे आईब्रो पेंसिल. तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके बाल कम हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फिल इन करना है, और जहाँ आपके बाल हैं वहाँ पे आप कम करिए. Done. The next thing which we will go ahead is with the eye makeup. So to prep my eyelid, I will use a concealer, and for that I'm using Maybelline 25 medium. ये concealer बहुत ही ज़्यादा common है और काफ़ी लोगों का favorite है, easily available है, and it's a good quality. तो let's start, and yeah, थोड़ा सा हम लगा लेंगे, ठीक है. Then you just need a beauty blender, and this beauty blender should be damp. इसको गीला कर लीजिए so that ये थोड़ा सा fluffy हो जाए, and then start blending it like this. अगर आप ऊपर ये नहीं भी करेंगे, if you don't do this step, that is okay. It basically gives you a more cleaner and edgy look. Okay, I will just set this with a loose powder, or you can also use a compact. For compact I'm using Bella Vost compact, and this is in the shade C004. This is really good for a dusky and medium skin tone.
एंड दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है। यहाँ पे मेरे पास मेकअप रिवॉल्यूशन का एंड दिस वन इज वेलवेट रोज। तो अगर आप बिगनर हैं और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, गो फॉर दिस पैलेट। आई थिंक ये अराउंड 800-900 का पड़ता है, पर इसमें आपका आई शेडो, आपका हाईलाइटिंग, आपका कंट्यूरिंग सब कुछ हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी मल्टीपर्पज काइंड ऑफ पैलेट। सो लेट्स गो विद अ न्यूट्रल शेड फर्स्ट। दिस वन, लेट्स गो विद दिस। I'm not going to do a very difficult makeup because I know ये beginners makeup है, तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा प्रोडक्ट और अभी हम इसको आउटर क्रीज पे हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। तो ये आउटर क्रीज बेसिकली जो आपका यहाँ पे जो फोल्ड आता है ना, यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। जस्ट गो इन द आउटवर्ड मोशन लाइक दिस। जस्ट टेक अ लिटिल प्रोडक्ट। एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है बिकॉज फिर वो आपके एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आप उसे स्मच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक थोड़ा सा प्रोडक्ट लो। द नेक्स्ट शेडो विच आई विल टेक इज से थोड़ा सा डार्कर शेड जो है ये वाला, ये लूँगी एंड इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे हल्का सा डालूंगी। एक थोड़ा सा स्मोकी लुक मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लिया एंड ये आई शेडो पैलेट काफ़ी अच्छा है, इसमें फॉल आउट भी नहीं होता है। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग। So now that I'm done with the base eyeshadow, I will just use one more eyeshadow. If you want, you can skip this and just go ahead with the eyeliner. But if you are a college going girl, or if you are someone who's newly married and you just want that little pop on your eyes, you can use a shimmer eyeshadow. So for shimmer, I'm just going to use this pink and it's a beautiful rose color, and I'll use my finger. And with a clean brush, just blend it once more so that there are no harsh edges. For eyeliner, I have Lakme Insta Black Eyeliner. This is really affordable and easy to use. तो मैं एक सिंपल सा छोटा सा विंग ड्रॉ करूंगी एंड आपको आईलाइनर बहुत ही क्लोज टू योर आई लाइन, बिल्कुल ही पास में ऐसे चलाना है, हल्का सा ऐसे कर दीजिए। सो आई जस्ट टेक प्रोडक्ट ऑन माई ब्रश थोड़ा सा, और फिर उसी प्रोडक्ट को मैं हल्का सा विंग में खींच देती हूँ। The next thing I'm going to start is with my base makeup. So for that I'm going to use a primer first. Now primer में दो टाइप के प्राइमर आते हैं। If you have skin normal to dry और dry skin, तो फिर आप प्राइमर ऑयल या क्रीम बेस्ड प्राइमर्स यूज कर सकते हैं। ओपन पोर्स को भी कवर करता है और आपको एक ब्लर का स्मूथ सरफेस दे देता है। आप सिलिकॉन वाले भी यूज कर सकते हैं, जिनकी ऑयली स्किन है वो सिलिकॉन वाले यूज करें। अब मेरी नॉर्मल स्किन है, पर्पल का प्राइमर बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिलिकॉन भी है पर उतना ड्राई भी नहीं करता है मेरा स्किन, और ऑयल बेस्ड भी नहीं है। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सारे स्किन टाइप यूज कर सकते हैं। और इसको मैं बेसिकली अपने यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़े से फाइन लाइंस है, ओके, बिकॉज ऑफ एजिंग, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लगा लूँगी जहाँ पे मुझे चाहिए कि एक स्मूथ लुक आए। तो यहाँ पे लगा लिया। अगर आपके ओपन पोर्स नहीं है तब भी आप उन जगहों पे लगाइए जहाँ आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइमर स्वेट भी कंट्रोल करता है। ओके, तो ये देखिए ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो गया और एक बहुत ही ब्लर इफेक्ट देता है, लाइक योर फोटोज विल कम एज इफ यू हैव लाइक अ ब्यूटीफुल स्मूथ स्किन। ओके, मैं ये रेगुलरली यूज नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है तो मैं दिखा रही हूँ। लेकिन वैसे आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपके ओपन पोर्स नहीं है और यू हैव अ नॉर्मल गुड स्किन तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नाउ फाउंडेशन के लिए मेरे पास आज एक्चुअली सीसी क्रीम है, बिकॉज मैं अफोर्डेबल मेकअप दिखा रही हूँ, तो मैं आज कोई और फाउंडेशन नहीं दिखाऊंगी। आई विल जस्ट यूज लैक्मी 925 CC cream and this is in the shade bronze. If you are someone who's fairer to me, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मुझसे गोरा है, आप बेज यूज कर सकते हैं। बेज मेरे पे थोड़ा सा एशी हो जाता है, तो इसीलिए मैं ब्रॉन्ज यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा येलो टोन ज़्यादा है और ये ज़्यादा अच्छा नेचुरल लुक देता है। अगर आपके पास टाइम है तो ब्यूटी ब्लेंडर से करिए, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से फिनिश बहुत अच्छा आता है।
The next thing which I'm going to use is concealer. So मैं personally concealer use नहीं करती हूँ, पर मैं आपको दिखा रही हूँ. तो क्या होता है कि आपने देखा होगा लोग ऐसे 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 एकदम भर भर के लगा लेते हैं. But if you are someone who is in her 30s, तो फिर बहुत ज़्यादा मत लगाओ, बिकॉज अगर आप लगाओगे ना इतना ज़्यादा कंसीलर, बाद में आपके बहुत ही केकी और फाइन लाइंस और ये सब आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता है. एंड इसको मैं सिर्फ हाथ से यूज़ करती हूँ और ब्लेंड कर लेती हूँ ऐसे. बेस मेकअप. एंड नाउ टू लॉक दिस मेकअप व्हाट वी नीड टू डू इज यूज़ अ powder. Either use a loose powder or you can use this compact, and I'm just going to take a little product and only use it on those places where your makeup can crease, like here and here थोड़ा सा. Okay, main area यही होता है. Whatever product is left, then I use it on my forehead because I don't sweat on my face. So मैं बहुत ज़्यादा लूज पाउडर नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे ड्राई पैचेस हो जाते हैं. अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं. So now we are done with the base makeup, and now I shall do something which was left earlier, which is lower eyelash. Now you have two options. Either just go with a kajal and just smudge it to get a smoky look, और अगर आपको और भी बहुत ही light कुछ चाहिए, then go with the same palette. Pick up the lightest shade, like I'll pick up this orange shade. Okay, outline my lower lashes. So this is something which gives a very natural look, and you can leave it like this. But if you want something deeper, then you can also use a black, or you can use a kajal and then smudge it. थोड़ा सा लगा लिया यहाँ पे और इसी को फिर smudge कर दिया. Just on the outer corners. Don't go all the way black till here. Just on the outer corners. Okay. Alright, so the eye makeup is done, and I'll finally finish it with a mascara. I'm using a purple mascara, and again this is affordable. If you want, you can curl your eyelashes a little, because that also helps. मेरी तो eyelashes इतनी कम है कि curl भी नहीं हो पाती है. बेचारा वो curler मेरे eyelashes पकड़ ही नहीं पाता है. So when you use a mascara, just don't go on the tip. What I do is I just go like really from the bottom and I drag it ऊपर ऐसे. For lower lashes, I will use this Wet n Wild mascara. It has a very thin brush and it is actually for lower lashes. पर मेरे ये ऊपर के lashes पे बहुत अच्छा काम करता है. इतना बेचारा mascara भी क्या कर लेगा जब बाल ही नहीं है ना. आपके पास ये पैलेट है, ये पैलेट ले लो. इसका जो सबसे डार्क शेड है ना, you can use this for contouring here and on your, if you have double chin. I personally do contouring only on my forehead because my forehead is really big. So I'll just take a little here, just a dot, because it's an eyeshadow, so don't take too much, and just go here. So right where your bone is, just below the bone, do your contouring. Okay, so I take product only once and मैं उसी product से दोनों तरफ contouring कर देती हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा contouring ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी कॉन्ट्यूरिंग कर लो, क्योंकि आपका फेस नहीं तो एकदम फ्लैट वाइट लगेगा. सो basically foundation is used to make your face flawless, and then you have to add color like contouring, blush and everything to make it look again normal and not like a dead person. अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि मैं अपने forehead पे यूज़ करती हूँ. मेरा forehead एक्चुअली बड़ा है, तो कॉन्ट्यूरिंग क्या होता है कि आपके फेस पे शैडोज ऐड करता है. सो एनी प्लेस विच इज चबी, विच हैज फैट, इट एड्स एंगल टू इट. कॉन्ट्यूरिंग करते हो तो वो आपकी शेडिंग कर देता है और आपको थोड़ा सा चिजल्ड लुक दे देता है. So that's contouring. So for the blush, I have Swiss Beauty blush palette, and this is really affordable, just for like 300 something. You get really nice blushes, and you also get two highlighters here. So these highlighters are really good, like really good, of pink and everything. तो अभी थोड़ा सा इधर और थोड़ा इधर. एंड लोग ब्लश करते वक्त ऐसे स्माइल करके ऐसे लगाते हैं. आई डोंट डू दैट, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप हर टाइम तो स्माइल नहीं कर रहे हो ना, तो अगर स्माइल करते हुए बनाओगे तो वो थोड़ा अननेचुरल हो जाता है. सो जस्ट लाइक स्लाइटली हल्का सा स्माइल करो एंड देन जस्ट ब्लेंड इट.
आई एम शोइंग यू सम एक्स्ट्रा स्टेप्स बिकॉज ये बिगनर्स का मेकअप है, पर अगर आप ऑफिस के लिए और जल्दी में कर रहे हो ये मेकअप तो आप इसमें से कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो। ओके, फॉर हाइलाइटर आई गिव यू 2 ऑप्शंस। एक होता है NY बे का हाइलाइटर एंड दिस वन इज एक्चुअली वेरी वेरी अफोर्डेबल हाइलाइटर। मैंने ऐसे ही मंगा लिया था बट ये बहुत अच्छा निकला गाइज। अगर डे टाइम में हाइलाइटर यूज करना है इसको यूज करो एंड इट्स इजी टू ब्लेंड विद योर फिंगर्स एंड दिस इज सो ब्लेंडेबल, दिस इज सो अफोर्डेबल। एंड देन अगेन टेम्पल्स ऑफ योर फोरहेड, जहाँ पे आपकी हड्डी उठी हुई है वहां पे आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो। फिंगर्स पे जो भी है उसको नोज पे हल्का यूज कर लिया। एंड दिस इज हाउ आई लाइक माई हाईलाइटर। आपको अगर ब्रश हाईलाइटर यूज करना है, टेक अ ब्रश, यूज इसी पैलेट का जो पिंक वाला हाईलाइटर, उसको हल्का सा लिया और इसी पे गोल्डन में हल्का सा यूं आप यूज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा। एंड देन ऑन योर क्यूपिड्स बो। फाइनली आती है बात लिपस्टिक के। लिपस्टिक के लिए 2 ऑप्शन रखे हैं और ये पर्पल की अल्ट्रा समथिंग लिपस्टिक है, बिंज ईटिंग कंपेनियन 3। मैं इसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। मैंने विदाउट मेकअप दिखाया था, तो विदाउट मेकअप ये बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा आउटलाइन वाइटलाइन नहीं करती हूँ, लिप लाइनर नहीं यूज करती हूँ। आप लिप लाइनर यूज करके शेप बना सकते हैं और फिर लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। तो इसी लिपस्टिक का मेरे पास एक दूसरा शेड है एंड मैं आपको इसी के ऊपर दिखा देती हूँ। और ये थोड़ा सा पर्पलिश पिंकिश शेड है एंड ये बहुत ही एकदम क्रीमी स्मूथ लिपस्टिक है गाइज। कोई भी कलर ना आप उसमें ब्लेंड कर सकते हो बहुत इजीली। दिस कलर कैन बी वर्न बाय वर्किंग वुमेन, टीचर्स एंड कॉलेज गर्ल्स। तो अगर आप ऑफिस मीटिंग में हैं तो वो ब्राउन शेड लगाइए। अगर आप थोड़ा सा पेपी कलर चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। तो आज मैंने मोस्टली सारे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज किए, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज किए। नेक्स्ट वाले में कुछ डिफरेंट चीजें मैं दिखाऊंगी। सो दिस इज माय कंप्लीट लुक एंड हाउ डू यू गाइस फाइंड इट? इट लुक्स नाइस, राइट? सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में और बहुत जल्द एक और बिगनर्स वीडियो लाऊंगी मैं, मेकअप ट्यूटोरियल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।